Today's our lecture is a non-destructive testing, NDT जिसे हम बोलते हैं। NDT देखने से पहले हमें कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है। ये जो टॉपिक है NDT वाला, हमारे सिलेबस के अनुसार एज पर द सिलेबस ऑफ द CTS और CITS, one chapter is there. In that chapter, inspection and testing, welding inspection and testing. Welding I will join here because of our main trade is a welding, or main part is a welding. Welding is nothing but the welding joints. We want to check it and we want to test it. Okay. So you can start, sir. Yeah, sir. Okay. Now I start. Okay. So now you know very well NDT, non-destructive testing. अभी NDT चालू करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी है। वो होती है विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, जिसे इंस्पेक्शन, और दूसरा पार्ट जो आता है वो टेस्टिंग आता है। अभी इंस्पेक्शन हम जो इंस्पेक्ट कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, वो इंस्पेक्ट हो। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें कुछ चीजें पता चलती है। हमें कुछ चीजें पता चलती है मीन्स व्हाट इज द मेन मोटो is our to conducting the test is nothing but to detect the difficulties, to detect the discontinuities, to detect the defect or fault in weldings. What type of faults in our job, किस प्रकार के दोष हमारे जॉब में आए हुए हैं, वो दोष हमें देखने हैं या चेक करने। अभी दोष कौन कौन से होते हैं जनरली, खास करके हमें जो दोष वेल्डिंग में तकलीफ देते हैं। फर्स्ट इज क्रैक, बहुत बार कॉमन है कि क्रैक आ गया करके। दूसरा पेनिट्रेशन वाला, वेरी लेस पेनिट्रेशन, जिसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन हम बोलते हैं, और जिसके वजह से हमें बहुत बार डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। Other defects also we will see there, but that type of defects are not important point of view. This because in the NDT parts really comes in the job, and that defects we want to detect through the destructive test or non-destructive. So before start the NDT, I will clarify to you the classification of the test. Tests are classified in the two types, that is with the destructive testing and non-destructive testing. We will focus also few points on the destructive testing also, so you can easily understand the destructive testings also. अभी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब क्या, एक हाथ जॉब ले लो या जॉब का सैंपल ले लो, और वो जॉब का सैंपल आप किसी मशीन में फिट कर दो, किसी वाइस में फिट कर दो, फिर उसके ऊपर प्रेशर दो, लोड दो, या ब्लोइंग करो, मारा करो हाथोड़ी से, और वो जॉब की फिजिकल टेस्टिंग करो। अभी इस टाइप में क्या होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, कि जो भी कुछ सैंपल पीस लेते हैं उसको चेक करते समय उसकी तोड़मोड़ हो जाती है, वो जॉब वापस हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते, और कुछ रिजल्ट हमें मिल जाते लेकिन उपयोग में नहीं ला सकते। उस टेस्ट को हम जनरली बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। सो द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज नथिंग बट यू टेक द सैंपल and you fit in the jar, you fit in the machine, and then applied the pressure, the job will be destroyed totally. You can't reuse this, and this test we will call as a destructive test. Understand? Is very important point, because in welding both are very important, destructive test also and non-destructive test also. And second one is the, as per the type of the test, is the non-destructive test. Now the all over the world, all over the industries are using the non-destructive testings. This type of testing conductor they are conducting is a QA/QC department, that is a quality control and quality assurance department. Each and every company, छोटी मोटी भी company रहेगी, it's the big companies and small scale industries companies also, if are there making the fabrications part, so every time they just go for the NDT, because this test is very easy, online we can conduct, the job will not be damaged, we can reuse the job, these things are there. So the NDT nothing but the non-destructive test. वो शब्दों में लिखा है, नॉन मतलब हमें कोई तोड़मोड़ करनी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव
का मतलब है हमें कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव, जो टेस्ट करते समय हम सैंपल ले लेते हैं या सीधा ऑनलाइन जॉब पे टेस्टिंग करवाते हैं और उस प्रकार में किसी भी प्रकार का हमें जॉब को धक्का नहीं बैठता है, जॉब को कोई तकलीफ नहीं होती है। So job will be not a difficulty, job will not be the disturbs, and job will not be the damage. This thing will not happen in the NDT. So this test we just call as a non-destructive test. Okay, understand? Now, first I will show to you the 2-3 points that is important for the destructive test point of view. In the destructive test, generally 3 parts are very important. That is with the कौन से हम डिस्ट्रक्टिव में देखते हैं तो टफनेस है क्या, तो हमें टफनेस देखना पड़ता है, उसका टफनेस कितना है, और टफनेस के बाद में हमें उस टेस्ट के जाता है कि फटीक कुछ है क्या, मतलब फटीक पार्ट एंड टफनेस पार्ट, ये अगर हम देख लेते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ पता चलता है कि ये टेस्ट करके हमें इनसे क्या बेनिफिट हो रहा है करके। सो द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर क्लासिफाइड इज नथिंग बट द टफनेस टेस्ट, फटीक टेस्ट एंड फ्रैक्चर टेस्ट। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, टफनेस, फटीग एंड फ्रैक्चर। अभी हमने थोड़ा मोटा वर्कशॉप में या थ्योरी में पार्ट पढ़ते समय सीखा है कि 4P इम्पैक्ट, आइजोड इम्पैक्ट या बेंड टेस्ट या रूट बेंड टेस्ट या फेड्स बेंड टेस्ट या प्रेशर टेस्ट, दिस टाइप ऑफ टेस्ट ऑल कम्स इन द जनरली destructive, nothing but the pressure is comes in both groups. I will clarify next point, but or sometimes we will just sound test also, that we will call as a is if any changing in the sound coming, so somewhere is the problem, or some hidden points should becomes there कि कुछ तो तकलीफ है क्या इसमें. So the sound test, if breaking the sounds, volume like this. So the toughness test, वेल्डिंग में सबसे ज्यादा हमें जो चेक करना पड़ता है वो होता है टफनेस टेस्ट. अभी टफनेस टेस्ट में क्या होता है कि जब भी हम देते हैं जॉब को चेक करने के टाइम में तो 2 प्रकार के लोड हम दे देते हैं. एक होता है स्टैटिस्टिक लोड और दूसरा होता है डायनेमिक लोड. अभी स्टैटिस्टिक लोड मतलब हमने एक जगह पे एक प्रेशर अप्लाई कर दिया और वो कुछ मिनटों तक है, कुछ घंटों तक है, वो स्टैटिस्टिक लोड हो गया. लेकिन डायनेमिक लोड जो होता है वो आते रहेगा और जाते रहेगा. That is called as a dynamic loads. So the 2 types of load generally हम लोग अप्लाई करते हैं. और इसमें हमारा मटेरियल कितना टफ है. टफ है means what? The properties of the metal is sustaining the capacity of the fraction point of view. So हम कितना भी लोड दे रहा है तो वो कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और फ्रैक्शन होएगा तो क्या होएगा, one certain point it will be crack, it will be fracture like this. So the applying the load, which type of loads is the static loads और इट्स अ डायनेमिक लोड्स. अगर वो डायनेमिक लोड्स हम लोग ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड डायरेक्शन. अभी स्टैटिक एक जगह पे रख दिया, लेकिन डायनेमिक लोड वैसा नहीं होता. रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, एक दिशा में वो लोड दिया जा रहा है लेकिन वो लोड कभी भी चेंज हो रहा है. जैसा हम ब्रिज बना रहा है तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है कि सपोज एक ट्रेन जाने वाली है, एक बड़ा लोडेड व्हीकल जाने वाला है, एक लोडेड बड़ी मालगाड़ी जाने वाली है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डायनामिक लोड में इट्स अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड द टर्न्स ऑफ लोड्स विल बी कम्स ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब. सो व्हाट इज द सस्टेनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब दोज यू हैव फिटेड देयर, इट्स नथिंग बट द वेल्डिंग. तो ये हम वहां पे चेक करने वाले. ओके, नाउ I will show to you 1-2 points here of the destructive points, so you can understand what is these are the points. Because in the load point of view, you see here as a toughness point or toughness testing is the dynamic loads or what a load और स्टैटिस्टिक लोड्स वो कब दिया जाता है और कितना हमें वो देना पड़ता है करके. जब हम वो लोड देते हैं तो व्हाट एक्चुअल हैपेंस देयर, वन आई जस्ट वांट टू शो द वन स्केच इज देयर, दिस टाइप ऑफ स्केच. जब भी हम आइजोड या 4P इम्पैक्ट टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी वेल्डिंग पार्ट के ऊपर हम एक नॉच कर लेते हैं, खांचा तैयार कर लेते हैं, और वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाइंग द प्रेशर, वी आर जस्ट अप्लाइंग द ब्लोइंग, वी आर जस्ट अप्लाइंग द लोड्स from the side of the notch or from the side of the opposite side of the notch.
Opposite side of the notch is nothing but the Charpy impact test, and if you are applying the force in the direction of the notch, so these points are here. Now you just see इस पॉइंट में हमें ये सब ड्राइंग में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से हमने प्रेशर अप्लाई जॉब फिट किया और उस तरीके से हमने उसको चेक किया. सो इट इज कॉल्ड एज द टफनेस टेस्ट. अभी टफनेस टेस्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या देखना पड़ता है कि इसका टफनेस कितना है. अभी इस टफनेस टेस्ट में क्या होता है, जॉब कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जनरली 3 जगह ऐसी होती है. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट, जो भी कोई फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है. एग्रीकल्चरल पार्ट, काफी जगह एग्रीकल्चरल मशीनरी और एग्रीकल्चर में जो पार्ट्स आते हैं वो यूज होते हैं, वो टोटली घूमते रहते हैं, फ्रिक्शन होता रहता है, तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए. सो द एग्रीकल्चरल पार्ट्स. एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट्स. इन कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में भी काफी जगह पे आज स्ट्रक्चरल वर्क में जो काम चलता है कंस्ट्रक्शन पार्ट में, तो वो भी 10 बार यूज किया, 10 बार ओपन किया, तो व्हाट विल हैपन, समटाइम्स द पार्ट्स विल बी गो स्लोली फ्रिक्शन लाइक दिस, तो वहां पे घिस जाएगा. तो वो हमें टफनेस उसका चेक करना पड़ता है. तो सो द टफनेस टेस्ट आर इन द 2 टाइप्स लाइक द आइजोड एंड चारपी यू सी हियर. एंड देन अभी जॉब को कैसा पकड़ना है, एनविल के ऊपर या कैंटिलीवर के डायरेक्शन में, और या आपके पास अगर पर्टिकुलर मशीन से पर्टिकुलर डिवाइसेस है तो उस हिसाब से आप जॉब वर्टिकली और जॉब हॉरिजॉन्टली. अगर चारपी करना है तो हमें जॉब हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, अगर आइजोड करना है तो जॉब हमें वर्टिकली पकड़ना है. अभी कैंटिलीवर टाइप एंड द नॉच द पेंडुलम्स. अभी पेंडुलम्स मींस व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग टू द पर्टिकुलर जॉब. एक जॉब के ऊपर किस दिशा में हमें मारा करना है उसको बोलते हैं पेंडुलम, नथिंग बट द. तो हम उस दिशा में उसके ऊपर ब्लोइंग करेगा, 1 टन का प्रेशर दे देगा, 1 टन का लोड रख देगा. सो दिस थिंग्स आर देयर. सिंपली सपोर्टेड टाइप एंड नॉच इज अपोजिट साइड. अभी चारपी में आप क्या करते हैं, उसका अपोजिट में करते हैं. सो दिस थिंग दे जस्ट वांट टू शो अस. नाउ अभी इन सारे स्केचेस में अगर आप देखोगे कि आपको स्ट्राइकिंग किस बाजू से करना है, मारा किस बाजू से करना है, और किस साइड से आपको जॉब की ताकत नापनी है. जॉब की ताकत नापनी मतलब क्या होता है कि हम लोग जनरली स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस को हम बहुत बार बोल देते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में चेक कर रहा हूँ, अभी यील्ड पॉइंट में चेक कर रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ में चेक कर रहा हूँ. तो यही तो हमें चेक करनी, जॉब की तान शक्ति चेक करना, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कि हमें तान शक्ति कितना है. कि हम लोग जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जॉब के ऊपर प्रेशर आने के बाद जॉब का कोई डायमेंशन चेंज होता है, जॉब का शेप एंड साइज चेंज होता है. सो अगर आपने दोनों बाजू से जॉब को खींचना चालू किया तो जॉब का डायमीटर चेंज हो जाएगा. अगर जॉब को ऊपर से आपने प्रेशर दिया तो जॉब का एरिया चेंज हो जाएगा. ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है. सो दैट इज विद द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस विल बिकम्स देयर. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है. हाँ, ओके, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स आल्सो. अभी टफनेस आने के लिए बहुत बार हमें टेम्परेचर टेस्ट देनी पड़ती है. अभी टेम्परेचर टेस्ट से क्या होता है कि मटेरियल के अंदर कुछ कंटेंट्स होते हैं. कार्बन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है, और कुछ नंबर ऑफ मेटल अलॉयज पार्ट्स होते हैं. ये जब कुछ टेम्परेचर में चला जाता है तो इनकी साइकिल चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है. उस स्ट्रक्चर को हम बहुत बार बोलते हैं, अगर आपको पता रहेगा, लास्ट टाइम में लेक्चर में आपको बताया भी था कि सीमेंटाइड में कब चला जाता है, हाँ, एस्टेनेटिक कब चला जाता है. ये स्ट्रक्चर हमें जो पता चलता है कि कुछ टेम्परेचर के बाद में 630 डिग्री या 730 डिग्री में हम किस स्टेज में थे, फिर उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, तो वो स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो वो एक बार सीमेंटेड होगा तो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट इन द ओरिजिनल स्टेज. तो ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है जॉब का, तो वो हमें देखना बहुत जरूरी होता है. सो दे जस्ट शोइंग अस द टेम्परेचर एंड द टेस्ट. नाउ द फटीग टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था. The fatigue performance is the metallic components is generally determined in 2 ways, either endurance limit and indicating the maximum stress and strain. अभी फटीग टेस्ट हम जब कंडक्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक टेस्ट का होता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड अगेंस्ट शॉक और इम्पैक्ट लोड. किसी भी जॉब की क्षमता चेक करना मतलब वो जॉब ऐसी जगह फिट कर दो कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर या लोड आएगा तो वो लोड को हमें सस्टेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए.
ये ध्यान में रखना, बरोबर है। अगर वो हमारी पास कैपेसिटी जॉब की है तो दैट टाइम वी कैन से आवर जॉब इज वेरी स्ट्रेंथ। तो ये हमें चेक करना पड़ता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द फटीग टेस्ट आल्सो। इन द फटीग टेस्ट द फेनोमेना वेयर द स्ट्रक्चर फेल्स व्हेन सब्जेक्ट टू अ साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड मतलब कुछ सेकंड में लोड जा रहा है, कुछ सेकंड में लोड आ रहा है, फिर लोड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक लोड। एंड ड्यू टू द साइक्लिक लोड द नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारा कहीं ना कहीं वेल्डिंग में अगर वीकनेस है या कुछ चीजें है तो उस चीजों को हम क्या करेंगे वहां पे नोट करेंगे। और इन द फटीग टेस्ट नथिंग बट हम लोग उसका बस साइक्लिक लोड में कितना वो सस्टेन कर सकता है उसको चेक करना रहता है कि फेल्योर नहीं होना चाहिए करके। ये सारी चीजें हमें वहां पे आती रहती है। तो नाउ हम जो चेक करते हैं तो दिस इज द ड्राइंग शोइंग। अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखोगे, द कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द ESTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल E466 स्टैंडर्ड्स, टाइप ऑफ द लोडिंग एक्शियल। अभी हम लोग खींच रहे, टाइप ऑफ द लोडिंग इज नथिंग बट द एक्शियल लोडिंग। अभी जब हम ये लोड दे रहे, एक सैंपल ले लिया तो उसका क्या हो गया, इस तरीके से लेफ्ट साइड में भी आप उसको खींच रहे, राइट साइड में भी आप खींच रहे, तो बीच में का डायमीटर चेंज हो गया। और वो डायमीटर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो चेंज ऑफ द लेंथ एंड एट दैट टाइम द व्हाट आर द स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन है उस जॉब का, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ नथिंग बट द कितनी, वो हमें वो पॉइंट मिलेगा। और एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि दैट जॉब विल बी टीयर देयर, टूट जाएगा। और वो टीयरिंग पॉइंट ही हमें बताएगा इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द जॉब और इट इज द सस्टेनिंग कैपेसिटी ऑफ द लोड ऑफ द जॉब। ये ध्यान में रखना। सो आई जस्ट वांट this important point is this, in this case you see the point and you show the where the actual the point will be go to tear, break होएगा। तो ये हमें देखना बहुत इस टाइप में जरूरी होता है कि किस इसमें वो जाएगा करके। अभी इस सारी केसेस में ये जॉब को आपको दिखाया देगा, एक आपके पास में जॉब दिखाया और जॉब का शेप कैसा चेंज होता है वगैरह, वो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जॉब फटीग टेस्ट में और चेंजिंग में आ जाता है करके। इस सिंपल टेस्ट में से धीमे 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 वो टूट जाता है। ओके, सो द फ्रैक्चर टफनेस। अभी फ्रैक्चर टेस्ट में क्या होता है, जब हमें किसी जॉब की रेजिस्टेंस कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, अभी सहना हर एक के लिए, विरोध सहना हर एक के लिए अलग होता है। और वो रेजिस्टेंस 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 लेके एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जॉब टूट जाएगा, सो फ्रैक्चर होएगा। सो द सस्टेनिंग कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब and if you test that pessimous, we will just call as a fracture test. Okay, so the fracture toughness, it is the part of the toughness also. Fracture कभी जा रहा है मतलब वो जाए, मटेरियल की ताकत कितनी है, so it's a fracture. Understand this point now? Now we will go for the our main topic is nothing but the whatever the topic is a NDT. Now we will see the मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताया जरूरी है कि हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी देखना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से काफी चीजें समझ लेती है सैंपल लेके और फिर प्रोडक्शन बनाती है और एनडीटी के लिए वो जॉब तैयार कर देती है। एक जॉब का सैंपल हमने फिजिकली चेक कर लिया तो नंबर ऑफ 100 या 1000 जॉब रहेगा तो हम एनडीटी करवा लेंगे। सो दैट जॉब वी विल नॉट डैमेज, दैट जॉब विल नॉट बी what we will say destroy, nothing but तो वो यहाँ पे होएगा। अभी हम लोग एनडीटी देखने वाले कि एनडीटी में होता क्या है। ओके, अभी ये एनडीटी आपको दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन टू द नॉन इंडक्टिव, introduction to the non-destructive testings. What is the definition of the NDT? The use of non-invasive techniques to determine the integrity of a material, component or structure or quantitatively measure the some characteristic of an object. The use of non-invasive techniques. नॉन इन्वेसिव मतलब कोई मारा नहीं करना है, जॉब को डैमेज नहीं करना है,
और उस चीज से हमें कुछ उसका पता चल जाए। अभी मैं एक एग्जांपल, जब आपका थ्योरी लेक्चर्स होता था, मैं पढ़ाता था और मैं मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताता था। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ। जब पुलिस डिपार्टमेंट वाले किसी चोर को पकड़ के लेके आते हैं, तो हर बार मार के उससे जान के नहीं लेते, वो कभी भी उसको मारते नहीं है, बहुत बार उसे गोड बोल के या मीठा बोल के उससे बहुत सी चीजें पता कर लेते हैं कि वो मारने के बाद शायद बोल नहीं सकेगा। अगर हम लोग उसको मारेगा तो वो हैम्परिंग हो जाएगा, बहुत कुछ चीजें हो जाएगी, डैमेजेस हो जाएगा। सो इट विल नॉट टू टॉक दोस थिंग्स वी वांट टू कवर फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम हिज साइड। तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू स्पीक very politely, they just try to speak very sugar coated words they are using, so he can gets everything ideas, he can tells everything what actual we wants. तो इस तरीके से, so it is the same in the determine the integrity of the material। तो मटेरियल की ताकत कितनी, वही तो हमें चेक करना है, कंपोनेंट का वही तो हमें चेक करना है, स्ट्रक्चर का वही तो पार्ट हमें चेक करना है। तो ये सारी चीजें हमें देखने हो सर। सो इज द डेफिनेशन, मैंने पहले भी बताया कि वेरी इजी डेफिनेशन बताया, जो जॉब की तोड़मोड़ नहीं होती है और जॉब को टेस्ट किया जाता है और जॉब वापिस रीयूज किया जाता है, उस टेस्ट को हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके, नाउ अभी मेथड्स ऑफ एनडीटी यहाँ पे देख लीजिए। इज द विजुअल, टैप टेस्टिंग, एक्सरे, एकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक, पल्स लीकेज, मैग्नेटिक मेजरमेंट, फिर माइक्रोवेव, थर्मोग्राफी, लिक्विड पेनिट्रेंट, ईडी करंट, लेजर वगैरह। इतना नंबर ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये भी टेस्ट हम कर सकते हैं एनडीटी की, कि इन सारे टेस्ट में कहीं भी जॉब को हमें तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग खास करके वेल्डिंग के जॉब को, जो वेल्डिंग किया हुआ जॉब है और वेल्डिंग एरिया हमें चेक करना है, और वेल्डिंग एरिया में कौन से दोष आए हुए, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आई हुई है। अभी डिसकंटिन्यूटी जो होती है या डिफेक्ट जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल डिफेक्ट रहेगा और एक एक्सटर्नल डिफेक्ट रहेगा। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि ये डिफेक्ट जो होता है, जो जॉब के अंदर के दोष होते हैं उसे हम इंटरनल बोलते हैं, जो जॉब के बाहर के दोष होते हैं उसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं। अभी एक्सटर्नल डिफेक्ट रहेगा तो हम लोग इजीली बोलेगा कि जॉब डिफेक्टिव है, जॉब के अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ दोष जॉब के अंदर बैठे हुए 2-4 mm अंदर है और वो बिना टेस्ट किए हमें समझने वाले नहीं है, तो उस जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनडीटी यूज करना पड़ेगा। सो एनडीटी इज द मेथड टू डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द वेल्डिंग जॉइंट। अंडरस्टैंड पॉइंट। अभी खास करके हम लोग 2-4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 2-4 प्रकार की बीमारियां होती है, वो बहुत तकलीफ देती है, कि उस बीमारियों के ऊपर हमें बार बार ध्यान देना पड़ता है। आज की सिचुएशन तो वैसे हो गई है कि बाहर निकलना भी नहीं है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन ऐसी और भी बीमारियां है जो हमें डिटेक्ट करने में टाइम लगता है, वो ऐसे ही दिखाई नहीं देती। तो लाइक दिस, सो वी वांट टू गो फॉर द टेस्टिंग like a blood, like a sample. So in this type of NDT also हमें स्पेशली मशीनरी यूज करनी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। ओके, अभी डिफेक्ट जो खास करके आते हैं, मैंने 2 डिफेक्ट आपको पहले बताया कि लैक ऑफ फ्यूजन, जॉब में पेनिट्रेशन कम आना, जॉब की लास्ट तक फ्यूजन नहीं होना, और ये फ्यूजन नहीं होएगा तो जॉब में कमकुवत आ जाएगा, जॉब वीकनेस रहेगा। वैसे ही क्रैक अगर जॉब के अंदर है तो वो भी हमें तकलीफ दे सकता है, या क्रैटर थोड़ा मोटा रहता है कि जॉब की स्ट्रेंथ कम कर देता है। कभी कभी ब्लो होल्स या पिन होल्स या पोरेसिटी जॉब के अंदर रह जाती है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती, और दूसरा रन हम वेल्डिंग के ऊपर मार देते हैं तो फाइनल रन हमारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वेल्डिंग को अंदर से चेक करेंगे, और वो चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनडीटी। ओके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स। अभी पहला वाला हमने कर लिया डिस्ट्रक्टिव, हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से भी पता कर सकते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव से भी पता कर सकते हैं, दोनों मेथड है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में हमारे जॉब को धक्का लगता नहीं है, और इसलिए इंडस्ट्रीज उसको फॉलो कर रही है, बिकॉज हर बार तो इंडस्ट्री को जॉब तोड़ना पड़ेगा नहीं। नाउ व्हाट आर द सम यूजेस ऑफ द एनडीई। अभी यहाँ पे एनडीई आ गया। अभी एग्जामिनेशन इवेल्युएशन जिसे बोलते हैं, कुछ बुक्स में एग्जामिनेशन मिलेगा, कुछ बुक में इवेल्युएशन मिलेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन। तो ये भी ध्यान में रखना है,
टी मतलब टेस्टिंग और ई मतलब इवैल्यूएशन। वो भी एक परीक्षण करना है, ये भी एक परीक्षण करना है। और वो इंस्पेक्शन जो होगा वो निरीक्षण करना है। हिंदी खास करके जो हिंदी भाषी के बच्चे लोग हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। अभी फ्लॉ डिटेक्शन एंड इवैल्यूएशन, फ्लॉ मतलब दोष। हाँ, अभी ये अलग अलग शब्द है। फ्लॉ, डिसकंटिन्यूटी, डिफिकल्टीज इन वेल्डिंग्स और फॉल्ट इन वेल्डिंग, डिफेक्ट इन वेल्डिंग, ये एक ही शब्द है। लेकिन जब हम लोग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं AWS, जब हम स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं ASNT, ISNT, ISO, लास्ट इसमें हमने देखा है सब, तो हर एक कंट्री अलग अलग शब्दों का उपयोग करके उसको उस तरीके से स्टैंडर्ड में डालते हैं। सो द फ्लॉज इज अ वन टाइप ऑफ डिफेक्ट और इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट। ओके, लीक डिटेक्शन, अभी पाइपलाइन का काम चल रहा होगा तो हमें लीक डिटेक्शन देखना बहुत जरूरी है। रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन का काम चल रहा है तो लीक डिटेक्शन देखना बहुत जरूरी है। पाइपलाइन, हर एक पाइपलाइन में, वो गैस की रहे, पानी की रहे या ऑयल की रहे, both are the all are the dangerous. If any leakage, if minor leakage also can be, blast also can also fire there. So we don't want to lose the any loose connection, or we will not be avoid any leak detection. If detected, so we will be rectify it and we will be test it. It's okay or not okay. Okay. Then location of the determination. अभी कहाँ पे मिला है वो भी हमको ढूंढने को आना चाहिए। डायमेंशनल मेजरमेंट्स, हर एक मेजरमेंट से हमें चेक करना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टराइजेशन, एस्टिमेशन ऑफ द मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बहुत बार वेल्डिंग करते समय क्या होता है, हम लोग उष्णता देते हैं तो उष्णता की वजह से क्या हो जाता है कि जॉब के कुछ अंदर के घटक जो होते हैं, स्ट्रक्चर इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम द वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो वो होता है तो वो फिजिकल और केमिकल स्टेज में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो वो होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो वापस उसको हमें वापस पहले स्टेज में लाना पड़ता है। स्ट्रेस, डायनेमिक रिस्पॉन्स एंड मेजरमेंट, मटेरियल शॉर्टिंग एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिटर्मिनेशन, इस सारी जगह पे हम लोग NDE का यूज करते हैं। So these are the NDE methods. अभी when are NDE methods used? There are NDE application at almost any stage in the production or life cycle of the component. हर एक जगह पे कंपनी में काम करते समय, प्रोडक्शन निकालते समय, फाइनल जॉब हो गया तो भी या काम चल रहा है तो भी, एक रन मार दिया फिर हमने चेक किया, दूसरा रन फिर वेल्डिंग का लगाया, तब भी हम लोग ये चेक करते रहे। खाली फर्क होता है कि which type of method we are applying there, कौन सी मेथड से हम लोग चेक कर रहे हैं करके, बिकॉज अलग अलग मेथड हम आगे देखने वाले हैं। अभी टू असिस्ट इन प्रोडक्ट द डेवलपमेंट, टू स्क्रीन और शॉर्ट इनकमिंग मटेरियल, टू मॉनिटर, इम्प्रूव और कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टू वेरीफाई प्रॉपर प्रोसेसिंग सच एज हीट ट्रीटिंग, टू वेरीफाई प्रॉपर असेंबली, टू इंस्पेक्ट फॉर इन सर्विस डैमेज, लाइक दिस। इन हर जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जनरली यहाँ पे दिया है कि 6 मोस्ट कॉमन NDE मेथड्स। अभी विजुअल मेथड्स, लिक्विड पेनिट्रेंट मेथड, मैग्नेटिक, अल्ट्रासोनिक, ED करंट और एक्सरे, ये जो सारी मेथड्स आपको दिया है ये सारे वेल्डिंग में आपके सिलेबस में है। चाहे वो CTI रहे, चाहे वो CTS रहे, ITI रहे। CTS बोलेगा तो ITI वाले बच्चे, हाँ, और CITS बोलेगा तो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग बच्चे। तो इन सारों में ये सिलेबस में दिया हुआ है। अभी आप लोग क्या है, खाली वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वेल्डिंग 1 साल का आपका पूरा हो जाएगा ट्रेनिंग, जब आप अप्रेंटिस जाओगे, जब आपका अप्रेंटिस पूरा हो जाएगा कहीं आप नौकरी लग जाओगे और एक्चुअल प्रोडक्शन में काम करोगे, और जब आप लोग का बना हुआ प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो बिना ये टेस्ट किए हुआ नहीं जाएगा। तब आपको ये इंडस्ट्रीज में सारी प्रकार आपको दिखाई देंगे, कुछ कुछ ITIs में, कुछ कुछ NSTIs में। हमारे यहाँ पे भी सारी ये टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग इस प्रकार के जॉब बनाते भी है, बच्चों को इससे टेस्टिंग करवा के लेते भी है। कुछ जगह पे नहीं है तो वो थेरोटिकली पार्ट समझ लेते। चलो थोड़ा बहुत तो थेरोटिकली पार्ट हमें समझ जाएगा तो इंडस्ट्रीज में हमें इसकी आइडिया आ जाएगा कि हमने ये कुछ सीखा था। अभी विजुअल इंस्पेक्शन करना है। अभी विजुअल इंस्पेक्शन मतलब क्या है कि खुली आंखों से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके मैं कुछ देख रहा हूँ क्या, या स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो यूज करता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिसे हम साउंड टेस्ट में यूज करते हैं। तो वैसे कुछ
डिवाइस मैं यूज कर लेता हूँ और उससे मुझको कुछ छोटी मोटी चीजें पता चल जाएगी। विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग बोलते हैं। अभी सपोज पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन है और वो बहुत पानी प्रेशर से जाने वाला है, तो मैं उसको क्या करूंगा, दोनों बाजू से बंद कर दूंगा और उसके ऊपर एयर प्रेशर भर दूंगा और मैं 2 घंटा या 14 घंटा या 20 घंटा या 22 घंटा, वट एवर द टाइमिंग्स आर देयर, इट इज डिफरेंट what type of liquid you are inject in the that pipelines, and then you will just put the one indicator what pressure at the time of given means starting, and at the 12 hours or 15 hours what is the pressure. If not change is there, means your line is not leakage, and if any change in that pressure, means you want to just check it where actual leak is in welding area. So these things are, so we will call as a visual inspection. हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन रखना है, विजुअली देखना है, खुली आंखों से देखना है और कुछ छोटे मोटे डिवाइस से देख लेना है। बहुत बार हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर लेते हैं वेल्डिंग में। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास काफी लोगों ने देखी भी होंगे, शायद काफी लोगों ने देखने नहीं होंगे, लेकिन मैग्नीफाइंग एक ऐसी ग्लास है जिसके वजह से हमें वेल्डिंग के छोटे छोटे डिफेक्ट वो ग्लास में से बड़े दिखाई देते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। शायद आप लोग सीआईडी वाली सीरियल देखते थे, टीवी के ऊपर सीआईडी आते थे और वो जो एसीपी अशुमन जी दिखाई देते थे, अरे वो क्या बोलते, वो दया जरा वो ग्लास लेके आ करके, ये एग्जांपल हम ऐसे सुन लेते थे मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो ऐसा ग्लास देख के देखता था, जो छोटे पार्ट रहते थे वो बड़े दिखाई देते थे। सो मैग्नीफाई करना, इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ द मैग्नीफाई इज नथिंग बट द स्मॉल टू लार्ज कन्वर्ट इट, सो दैट ग्लास इज हेल्प अस। अभी वेल्डिंग में छोटा सा पिन होल रहेगा, पिन होल इज द very small hole, the orifice dia is below the 1 mm dia, we will just call as, so that hole we will call as a pinhole। अभी इतना 1 mm का पिनहोल कैसे दिखाई देगा, लेकिन वही मैं मैग्नीफाइंग ग्लास अगर यूज कर लूंगा तो वो मुझे इजीली दिखाई देगा। ओके, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आपको क्लैरिफाई हो जाना करके। सो विजुअल इंस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हम काफी जगह पे आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज विजुअल इंस्पेक्शन का उपयोग कर लेती है, और विजुअल इंस्पेक्शन का उपयोग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमें वेल्डिंग में सामने कोई डिफेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है करके। अभी तो मैंने ये 2-3 एग्जांपल आपको दे दिए कि ये भी आप लोग आपके वर्कशॉप में और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में आप लोग इसको देख सकते हैं करके, विजुअल इंस्पेक्शन को। अभी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड रेडियोग्राफिक टेस्ट, जिसे एक्सरे और गामा रे आप बोलते हैं, और लास्ट वाला जो है ईडी करंट टेस्ट। मैंने ईडी पहले नहीं लिया, बाद में लिया, क्योंकि जो कुछ पार्ट्स होती है, पाइपलाइंस होती है, छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, उसको ईडी करंट टेस्ट बोलते हैं, तो वो टेस्ट हमें एनडीटी में देखने पड़ते हैं। नाउ वी विल सी हियर द विजुअल इंस्पेक्शन। मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इंस्पेक्शन मेथड टूल्स इंक्लूड फाइबरस्कोप, ब्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड मिरर्स। मैंने पहले भी बताया कि एटीएस कैसी होती है कि अभी ये जो बोल रहे कि ये टूल्स यूज कर लो, ये डिवाइसेस यूज कर लो, और जिससे आपको पता चल जाए कि जो ऊपर ऊपर जाने वाले एक्सटर्नल डिफेक्ट है वो हमें इजीली दिखाई दे करके। Portable video inspection unit with the zoom allows the inspection of the large tanks and vessels and railroads, tanks and cars and sewer lines। ये सारे लाइनें में कितने प्रकार उन्होंने बताया, इन सब काम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और रोबोटिक क्रॉवेल्स परमिट द ऑब्जर्वेशंस इन hazardous tight areas such as the air ducts and reactors and the pipelines। वहाँ पे भी विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग कर सकते हैं करके। ओके, अभी यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति वही मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हाथ में लेने के बजाय वो एक डिवाइस में, एक टूल्स में उसने फिट कर दिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो वॉच रिपेयर वाला जो होता है, घड़ी रिपेयर वाला जो रहता है, ही इज ऑल्सो यूजिंग वन डिवाइस एंड ही फिट्स इन आई एरिया, उसके आंखों में वो बैठा लेता है, क्योंकि घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, वॉच के जो पार्ट्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, very difficult to see in properly। when we are using the magnifying glass, so that parts will be, उनका एक्चुअल जो साइज रहता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, तो हमें वो इजीली दिखाई देता है। सो लाइक दिस, दूरबीन हम जिसे बोलते हैं, हाँ माइक्रोस्कोपिक वाला जिसमें बोलते हैं कि उसमें हमें बड़ा दिखाई दे रहा है पिक्चर, सो लाइक दिस। ओके, फर्स्ट टेस्ट हम देखे थे एलपीटी, जिसे लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, एलपीआई। अभी आई लिया तो इंस्पेक्शन हो गया, टी लिया तो टेस्टिंग हो गया। ये शब्द थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि कभी ना कभी एमसीक्यू में आपको पूछे जाता है। तो
अभी लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन कर रहा हो, तो लिक्विड इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करें, a liquid with a high surface wetting characteristics is applied to the surface to the pad and allow time to slip into the breaking defects. अभी यहाँ पे एक छोटा सा आपको ड्राइंग में आपको बता रहा हूँ, ये छोटा सा ड्राइंग में इसने क्या किया होता है, मैं आपको इजीली पहले बता देता हूँ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट क्या होती है। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की सबसे इजी टेस्ट है, जिसमें हम लोग जॉब के ऊपर के या जॉब के सब सर पे, जॉब के 2-4 mm के अंदर अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम ढूंढ सकते, डिटेक्ट कर सकते मतलब ढूंढ सकते। सो हाउ मच द इंटरनल गोज द डिफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सब सरफेस डिफेक्ट्स आफ्टर अप्लाइंग द पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट ये एक प्रकार का केमिकल होता है, जहां वेल्डिंग किया है उसके ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंस होती है, एक क्लीनर होता है, दूसरा पेनिट्रेंट होता है, और लास्ट वाला तीसरा जो होता है वो डेवलपर होता है। तो अपना वेल्डिंग जब खुद कर लो, उस जॉब को साफ सुथरा करवा लो, और वेल्डिंग का एरिया जो वो क्लीनर ले लो। क्लीनर इज वन टाइप ऑफ द थिनर, वन टाइप ऑफ द क्लीनिंग मटेरियल। वंस यू अप्लाई, कपड़ा ले लो या कॉटन ले लो और वो वेल्डिंग का एरिया उससे साफ कर लो, तो जॉब के ऊपर गंद लगा रहेगा, जॉब के ऊपर डस्ट लगा रहेगा, तो वो इजीली निकल जाएगा। तो क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट यू विल अप्लाई देयर द क्लीनर, और 1-2 मिनट में जब वो क्लीनर सूख जाएगा, देन यू अप्लाई द पेनिट्रेंट। वो पेनिट्रेंट के लिक्विड्स आते हैं, वो पेनिट्रेंट्स के स्प्रे बॉटल्स आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और वो वेल्डिंग किया हुआ जॉब के ऊपर पेनिट्रेंट मार देना। वो अलग अलग कलर के भी आते हैं, हम बोलते हैं पिंक कलर के दे दो, रेड कलर के दे दो, या व्हाइट कलर के दे दो। अभी ये क्यों है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वेल्डिंग में खास करके हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। अभी ईएमएस है तो काला कलर जैसा हमें दिखाई देता है, कॉपर है तो हम ब्राउनिश कलर जैसा दिखाई देता है, एल्यूमिनियम है तो व्हाइट कलर जैसा दिखाई देता है। हाँ, अभी स्टेनलेस स्टील है तो वो थोड़ा सा शाइनिंग वाला अलग सा दिखाई देता है। अभी इन सारे मटेरियल को आप थोड़ा सा देख लो, इनके कलर अलग हो जाएंगे। अभी व्हाइट कलर के ऊपर मैं व्हाइट पेनिट्रेंट अप्लाई करूंगा तो मुझे कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, तो आई विल अप्लाई द पिंक कलर देयर। सो easily I can apply the penetrant and easily the brightness will come. मेरे आंखों को कुछ तकलीफ नहीं होगी, so my eyes will be go and see the easily to the where defect actual comes. व्हाइट के ऊपर व्हाइट मारेगा तो डिफेक्ट देखने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। So the what type of penetrant you are using, what type of the color of the penetrant you are using is depend upon the what type of material you want to check it. कौन सा मटेरियल तुम्हें चेक करना है। ओके, समझ गए ये पॉइंट। तो यहाँ पे यही आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, कुछ लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि सर ये कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। सो द विजुअल इंस्पेक्शन इज द final step is in the process. The penetrant use often loaded in a with a fluorescent dye, and inspection is done under ultraviolet light. अभी यहाँ पे फ्लोरोसेंट नाम का एक टेस्ट आपको दिया गया है। अभी रेलवे जैसे इंडस्ट्रीज है, नेशनल थर्मल पावर जैसी इंडस्ट्रीज है, बीआरसी जैसी इंडस्ट्रीज, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च इंडस्ट्रीज है। अभी इनमें अगर बड़े बड़े पार्ट टेस्ट करना है तो वो लोग क्या करता है, फ्लोरोसेंट यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट इज वन टाइप ऑफ द मटेरियल, इज वन टाइप ऑफ मटेरियल। दिस मटेरियल यू कैन आल्सो अप्लाई ऑन द दो जॉब you want to check. You just apply that material and just you wash it and then bring that job in a ultraviolet rays cabin. वो कैबिन अल्ट्रावायलेट रेज की रहेगी, पूरा अंधेरा रहेगा, और वो जॉब के ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब में अगर डिफेक्ट रहेगा तो वो इजीली दिखाई देगा। सो द फ्लोरोसेंट टाइप ऑफ द टेस्ट उसे हम बोल देते हैं। ओके, सो यू अंडरस्टैंड हियर। सो तो ये भी टेस्ट हम लोग उसमें से मटेरियल में करवा ले सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से चेक करके, या हम लोग सीधा सीधा फ्लोरो लिक्विड पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद वो भी कर ले सकते। अभी इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट था मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पेनिट्रेंट अप्लाई करने की एक पर्टिकुलर मेथड होती है, उस डायरेक्शन से उस पेनिट्रेंट उसको अप्लाई करने का, फिर उसको 5-10-15 मिनट रखते, 10 से 15 मिनट, 10-12-15 अलग अलग दिया रहेगा, जिसे बोलते हैं सोकिंग टाइम, हाँ, ड्वेल टाइम, अलग अलग शब्द हो सकते। वो सूखने के लिए
वो पेनिट्रेट अंदर इंजेक्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं ड्वेल टाइम या सोकिंग टाइम वगैरह। तो अंडरस्टैंड दिस। और 10-12 मिनट के बाद वो पेनिट्रेंट उसके अंदर चला जाता है। अगर जॉब में कुछ डिफेक्ट्स वगैरह रहेगा तो वो पेनिट्रेंट वहीं से उल्टा वापस आने की कोशिश करता है और वो हमें देखना रहता है 10-12 मिनट के पीरियड के बाद में। अभी कॉन्ट्रास्ट आने के लिए कुछ लोग डेवलपर डालते, तो डेवलपर भी यूज कर सकते हैं। डेवलपर की वजह से हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। ये पे सफेद कलर वाला दिखाई दे रहा है, अब ये सफेद कलर कुछ नहीं है, तो ये जो सफेद कलर है ये हमें ये बता रहा है कि पेनिट्रेंट मारा था और डेवलपर देने के बाद में वो हमें क्लियरली जॉब के अंदर डिफेक्ट करके दिखाई दे रहा है। ओके, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी टेस्ट है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं। अभी डाई पेनिट्रेंट भी यूज करते हैं, लिक्विड एंड डाई, डाई और कुछ नहीं है। अगर कोई जॉब हॉरिजॉन्टल है, कोई जॉब वर्टिकल है, तो उसके ऊपर मैं पेस्ट के लिए जैसा कुछ लिक्विड अप्लाई कर दूंगा, सो वो डाई फॉर्म हो जाएगी वो लिक्विड की जगह। ओके, सो दिस इज ओनली वन द डिफरेंस इज देयर, यू अप्लाइंग द डाई और अप्लाइंग द लिक्विड ऑन अ टेस्टिंग डिवाइस, टेस्टिंग मटेरियल और टेस्टिंग थिंग्स। ओके, सो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, नेक्स्ट वन इज अ टेस्ट। अभी हमें ये सब टेस्ट क्यों यूज करनी पड़ती है? जनरली कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो पहले इजी टेस्ट अप्लाई करती है, फिर अप्लाई करती है उसके नेक्स्ट टेस्ट, फिर अप्लाई करती है नेक्स्ट टेस्ट। जब हम छोटे मोटे बीमार पड़ते हैं तो पहले डॉक्टर 2-3 दिन हमें गोली वगैरह दे देता है, नहीं तो फिर ब्लड टेस्ट करता है, फिर एक्सरे करवाता है, या फिर आगे और कुछ टेस्ट करवाता है। लेकिन पहले इसमें वो सब ये नहीं करवाता है। क्यों? कि इजीली अगर हमें पता चल जाए तो व्हाई टू गो फॉर द दिस टाइप ऑफ हायर टेस्टिंग, और व्हाई टू स्पेंड द मनी लाइक दिस, बिकॉज इकोनॉमिकल पॉइंट सब जगह पे तो आ ही जाता है। सो नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। अभी ये जो टेस्ट है ये खाली फेरस मटेरियल के ऊपर होती है कि जॉब को मैग्नेटिज्म होना चाहिए, जॉब के ऊपर चुंबकत्व निर्माण होना चाहिए, चुंबकत्व तैयार होना चाहिए। सो the method of the magnetize of the job is important. So ferrous material only the property to magnetize the job, other material has not the type of this properties. So the only ferrous material we can apply in the NDT of the magnetic particle testing, inspection, MPI जिसे बोलते हैं। The part is magnetized. Finally, mill iron particles coated with the dye pigment are then applied to the specimens, and these particles are attracted to the magnetic flux linkage field and will cluster to form on the indication directly over the discontinuity. अभी ये जॉब आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉब के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हमने अप्लाई कर दी। हम लोग 10वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में फिजिक्स में कुछ पढ़े थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसे यस और एन करके अक्षर दिया जाता था। तो मैग्नेटिज्म करते समय वो जो एसएन वाला फंडा हमें बताया जा रहा था कि द मैग्नेटिक लाइंस विल बी पासेस इन द जॉब, इनसाइड द जॉब, एंड द डायरेक्शन विल कम्स वन इन अ स्पीडली। If any broken things comes, if any resistance come, that lines will be come back. So it is called as the flux leakage. उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। क्योंकि हमें ये करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा लोहे का जो बारीक बारीक कण का मटेरियल डालते हैं, उसको बोलते हैं आयरन फ्लक्स। ये ध्यान में रखना, हाँ? क्योंकि हम जब एमपीटी टेस्ट करते हैं तो हमें वो एक टाइप ऑफ मशीन यूज करना पड़ता है या कॉइल टाइप ऑफ मशीन यूज करना पड़ता है। तो वो मैग्नेटिज्म होने के बाद वो टेस्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें की जरूरत होती है कि जिसके वजह से हमें डायरेक्शन पता चल जाए कि मैग्नीट्यूड कहाँ जा रहा है, जिसके वजह से हम मैग्नेटाइज किया हुआ जॉब के ऊपर का लाइन चेक किया जाए। क्योंकि हमें यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ऑब्जर्वेशन। मेरा ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है, इसलिए इसमें इस टेस्ट में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि चलो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे कोई प्रिंट मिल गई करके, वो प्रिंट भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस टेस्ट में हमें ज्यादा प्रैक्टिस और हमारा बहुत ही पक्का ऑब्जर्वेशन जरूरी है। हमारा जितना ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहेगा उतनी टेस्ट ये परफेक्ट होगी।
हाँ, सो ड्यू टू द लीकेज, अभी यहाँ पे जॉब में क्रैक दिखाई दे रहा है, अभी ये एसएन भी दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा अभी। तो क्या हो गई, वो लाइन वहां पे ब्रेक हो गई, लास्ट की लाइन अच्छी जा रही थी, वो लाइन ब्रेक हो गई, और वो ब्रेक होने की लाइन क्या हो गई, हमें इंडिकेशन मिल गया। तो इस टेस्ट में क्या मिलता है हमें, इंडिकेशन, फ्लक्स लीकेज इंडिकेशन जिसे बोलते हैं, और वो इंडिकेशन मिल गया, मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि यहाँ तो जॉब में कुछ तो गड़बड़ है। So this is the point indicating, or that indication will tell us here may be defect, may be. I will not say as a sure, may be. ध्यान में रखना, okay? So that is with the defect. So the magnetic particles are there, magnetic fields are there, lines. They're just showing to us. अभी यहाँ पे भी एक कॉइल जो था वो मैग्नेटिक किया गया था। जब ऑनलाइन जॉब है, ऑनलाइन जॉब को हम मैग्नेटाइज करते हैं, तो इस तरीके से हम वो जॉब को टेस्टिंग में चेक कर सकते हैं। अभी ये अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ हुक्स है, यहाँ पे अंदर जॉब के अंदर कुछ क्रैक्स थे। अभी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कब दिखाई दे रही है कि जब मैग्नेटाइज किया गया जॉब, और मैग्नेटाइज करने के बाद उस जॉब को जब मैं चेक करने गया और जब मुझे इंडिकेशन मिलते गए, तो फ्लक्स जो डाला था वो फ्लक्स कहीं और हो गया, और वो लाइन जो थी वो बीच में रह गई, फ्लक्स तो पूरा योक मशीन को चिपक गया, तो वो मुझे इंडिकेशन दिया था। तो दिस इज द मेन पार्ट, हाउ टू चेक इट है, और वो इंडिकेशन यहाँ पे, ठीक है। और आपके लिए थोड़ा सा एक बता देता हूँ, ध्यान में रखना, कोई भी जॉब जब ऑनलाइन आप लोग एमपीटी कर रहे हैं, तो जॉब को मैग्नेटाइज किया है, तो जॉब को डीमैग्नेटाइज भी करना जरूरी है। डीमैग्नेटाइज की अलग अलग पद्धत भी है, जॉब गर्म करके भी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, या आपके पास जो एक टाइप मशीन है उसमें डीसी रिवर्स में चला जाके 2 बार जॉब उठा देंगे तो वो भी चेक हो जाता है। और डीमैग्नेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आपके पास मैग्नेट रहता है, वो उसको आप चेक करके, और वो बताता है कि जॉब मैग्नेटाइज है या नहीं है करके, हाँ, उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वंस यू मैग्नेटाइज द जॉब, you can't use within a 6 hour or 12 hours, because it will take sometimes time also to demagnetize. Understand the point? Next one is the radiography test. अभी रेडियोग्राफी टेस्ट मतलब क्या, रेडिएशन वाला टेस्ट, एक्सरे वाला टेस्ट हम जिसे बोलते हैं। द रेडिएशन यूज इन अ रेडियोग्राफी टेस्टिंग इज अ हायर एनर्जी version of the electromagnetic waves that we see is the visible light, and the radiation can come from an X-ray generator or a radioactive source। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोगों ने भी हमारे लाइफ में, या कब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग खुद का भी एक्सरे करवा लेते हैं। अभी एक्सरे करवाते हैं तो उससे हम बॉडी के अंदर के पार्ट्स का कुछ हमें पता चल जाता है, जो अंदर है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो वो हमें हमारी एक पिक्चर कॉपी दे देता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, पिक्चर कॉपी आ गई मतलब आपके पास क्या आ गया है, उसका एविडेंस आ गया, एक प्रूफ आ गया कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं। अगले दो, अभी लास्ट 2 टेस्ट जो देखा एलपीटी और एमपीटी में, वहां पे कहीं आपको एविडेंस नहीं मिल रहा था, कोई पेपर नहीं मिल रहा था, वहां पे आपका खाली ऑब्जर्वेशन था। तो रेडियोग्राफी इट्स अ पक्का टेस्ट, इट्स अ प्रूफ टेस्ट ऑल्सो, कि आप जो जॉब करोगे वो जॉब के ऊपर अगर आप लोग अगर एक्सरे करवा लेते हैं तो इस तरीके से। अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज एंड दिस रेज आर सेंडिंग इन योर जॉब, लाइक दिस। अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अभी ये पूरा रेडियोग्राफिक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतर हम लोगों ने कहीं ना कहीं रेडिएशन एनर्जी में किया, और वो रेडिएशन एनर्जी हमने एक जगह पे ले ली और वो एक्सरे ट्यूब में से पास किया, और एक्सरे ट्यूब में से पास करने के बाद वो रेज जो बाहर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सरे वगैरह। आप थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि अभी ये सब डिटेल हम लोग यहाँ पे ले नहीं सकते कि हाउ टू फॉर्म द एक्सरेज, हाँ, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आते हैं वो एक दूसरे को जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जब साइकिल कंप्लीट करने के लिए घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें जब हो जाती है, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे तैयार होता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के बाद उसका रेडिएशन में रूपांतर कैसे होता है, हाउ टू कन्वर्टेड वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी, मींस हीट एनर्जी इनटू electrical energy into heat energy, and that heat energy into converted into the radiation energy, and that radiation energy we are utilizing for the checking the our job of the welding jobs. So this type of things are happens here, okay? तो आपको ये थोड़ा बहुत तो जरूर समझ रहा होगा कि इसको कैसे करते हैं इन पिक्चर में। सो ये एक्सरे इस तरीके से होता है। अभी
फिल्म रेडियोग्राफी, अभी हमें एक्सरे के पीछे जो एक फिल्म मिलती है कि वो जॉब की एक इमेज हमें मिल जाती है, फिल्म बोलेगा तो इमेज जिसे हम बोलते हैं कि हमने जॉब रख दिया। अभी आपको यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाया हुआ है कि ये टॉप व्यू में हमने रखा और टॉप व्यू के थ्रू ऊपर से हमने रेज छोड़ी, नीचे हमने एक पेपर रख दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सरे पेपर। तो वो पेपर के ऊपर वो ड्राइंग आ जाती है और वो ड्राइंग में हमें जॉब कैसा था वैसी आपको इमेज दिखाई देती है। सो द पार्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड अ पीस ऑफ अ फिल्म। अभी हमें जॉब चेक करना किस में रखा है कि मशीन और फिल्म, फिल्म बोलेगा तो एक्सरे फिल्म, उनके बीच में जॉब रखना है। एंड द पार्ट विल स्टॉप सम ऑफ द रेडिएशन, थिकर एंड मोर डेंस एरिया विल स्टॉप मोर द रेडिएशन। द फिल्म डार्कनेस will vary with the amount of radiation reaching the film through the test object। अभी यहाँ पे मोर एक्सपोजर और लेस एक्सपोजर इस टाइप की आपको दिखाई दिया। अभी डार्क कलर के रहेंगे तो उसमें से इजीली वो बाकी पास नहीं होगा, उसके ऊपर इमेज आ जाएगी करके, हाँ, जिससे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द दैट फिल्म बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखाई है कि इस तरीके से जॉब चेक किए हैं। अगर ये जॉब मैंने चेक किया और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ पार्ट्स के अंदर में गड़बड़ दिखाई दी है, तो ये गड़बड़ दिखाई दी मतलब क्या कि यही जॉब के अंदर आया हुआ दोष है। और किससे पता चला मुझे? डिपेक्ट से। बाहर से जॉब तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर क्या मुझे पता नहीं है। सो एक्सरे विल टेल मी इफ द इनसाइड एनी प्रॉब्लम और इनसाइड नॉट प्रॉब्लम। ओके, सो लाइक दिस। सो इज अ पॉइंट इज देयर। सो द few object they just show us how to check the I will not check this बाद में। अभी अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन जिसे बोलते हैं यूटी टेस्ट। अल्ट्रासाउंड हमें यूज करना है, कुछ वेव्स हमें यूज करनी है, वो साउंड वेव्स हमें भेजने हैं जॉब के अंदर और उसकी सहायता से, और वो जो साउंड वेव्स रहेगी वो एक हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में भेजना है जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं। हमारे इसमें उधर हम सोनोग्राफी भी करते हैं, पिक्चर हमारे सामने दिखाई देता है। अभी हर एक की यूटी कर की जाती है ऐसा है क्या? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग नहीं। अगर एक्सरे में मुझे बताया गया कि आपके जॉब में ये दोष है तो एक्सरे हमें क्या बताएगा कि खाली दोष है। एक्सरे हमें ये नहीं बताएगा कि दोष कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना डीप है, कौन से एरिया में बैठा हुआ है। These things will not clear the X-ray. X-ray will only say us the defect is inside or defect is not inside. If defect is the inside, so we will just want to go for the ultrasonic test, because ultrasonic test will tell us what type of defect is there, what type of defects, what is the depth of the defect, what is the length of the defect. This total area and size we just want to calculate through the sending the waves inside the job, and picture will comes on our monitor and we will calculate the area because some calculation is there. Some probes we want to use there. Through the probes, the echo we will set there, and that echo will tell us one point will become there, and that point we will just measure, and after all this point taken, so we can calculate the area of the defective part inside the welding job. हाँ, ये आपको शायद थोड़ा मैं जो इंग्लिश में बताया थोड़ा समझ गया होगा कि कैसे उसको चेक किया जाता है करके। सो अल्ट्रा, अभी यहाँ पे पल्स इको दिया हुआ है। अभी पल्स इको मतलब क्या? अगर किसी ने सोनोग्राफी देखी रहेगी या पिक्चर में हमें दिखाई देता है कि पल्स ऊपर जा रहा है, पल्स नीचे जा रहा है, हमारे हृदय के भी जो कुछ ब्रीथिंग बोलते हैं उसे, हाँ, तो वो कम ज्यादा हो रही है तो वो एक ईसीजी मशीन लगवा देते हैं और वहां पे हमें दिखाई देते हैं मॉनिटर पे, देखो आपका ईसीजी के कैसे ऊपर नीचे चल रहे करके। तो तो वो हमें यही बताता है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रॉपरली वर्क और नॉट, दैट दैट थिंग्स विल बी शोन और दैट मॉनिटर, ऐसा करके। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको दिखाई दिया है कि ये आपको लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन है जिसके ऊपर हम लोग ये पॉइंट टू जो बोल रहे से इको बोलते हैं, और ये जो जॉब है और ये प्रोब है, तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है कि मशीन्स को प्रोब जोड़ना है और प्रोब जॉब के ऊपर घुमाना है, और जिसकी सहायता से हमें इको मिलेंगे और वो इको से हमें पता चलेगा कि जॉब के अंदर दोष है या जॉब के अंदर दोष नहीं है। जिसे हम बोलते हैं कि सेंडिंग वेवलेंथ जा रही है और रिसीविंग वेवलेंथ वेव छोड़ी जा रही है,
तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ अगर कोई तकलीफ आ रही है, सो दैट वेव्स विल बिकम उल्टा रिवर्स रिफ्लेक्शन, तो वो हमें इंडिकेशन रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर इंट्रोड्यूस इन अ मटेरियल। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, बहुत जोर की साउंड वेव। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल, डीबी में बहुत बार हम आवाज कर लेते, जब बड़ा डीजे चलता है तो हमारा कान वो सुनने के लायक नहीं रहता है, because certain capacity of our ears to listen the volume, if more than that our part will also the damage. So how much the dB, तो जॉब में वो हमें साउंड वेव छोड़नी है जिसकी वजह से वो जॉब के अंदर कुछ तो जॉब में बदल घड़वाएगा। once you injecting the sound एक्सक्यूज मी wave सर, inside the job, yes sir, सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारे पास थोड़ा समय की कमी है, क्या तो क्योंकि 5 बजे नेक्स्ट लेक्चर भी है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सर लेक्चर थोड़ा रैप अप कर दीजिए। 2 या 3 मिनट दे दीजिए सर। राइट सर। Okay, sir. Okay, sir. So now you understand the radio ultrasonic test also. तो ultrasonic test में हमें once you injected the sound waves inside the jaw, some things happens inside the jaw and that will be reflected in a echoes. That echo already we have settled, already we have measured. जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमने उसका कैलिब्रेशन करके रखा था। हाँ, once word will be called, that is the calibration. Calibration is nothing but the standards probes. Standards probes are there. As per the probes, we will be set the echoes on our monitor. अभी फिजिकल आपको तो जॉब में अभी शो नहीं कर सकता, लेकिन आपको थियोरेटिकल पार्ट ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको देखनी होती है। तो इस सहायता से हम लोग यूटी भी कर सकते हैं और यूटी की वजह से हमें अंदर के जॉब के पूरे डिफेक्ट दिखाई देते हैं, समझते। सो यूटी इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट टेस्ट इन अवर एनडीटी टेस्ट, लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। Common application of the NDT: inspection of the raw products, inspection of the following secondary processing, in service damage inspection, ये हम चेक कर सकते हैं। फोर्जिंग, कास्टिंग, एक्सट्रूशन, इतने प्रोसेस वाले जॉब पे हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी ये सारी चीजें हम लोग को चेक करने को होता है। हमें हमारा पार्ट जो है वेल्डिंग का, क्योंकि बाकी पार्ट से हमें लेना देना नहीं है कि हर एक पार्ट की आप एनडीटी कर सकते हैं, हर एक पार्ट की आप यूटी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करता है, वेल्डिंग का एरिया खाली हमें चेक करना होता है। सो वेल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। सो दिस द क्रैक्शन है क्या, करोजन है क्या, या वेयर एंड टियर हुआ है क्या, टूटा फूटा है क्या, जिसे हम बोलते हैं हीट्स की वजह से कुछ डैमेज हुआ है क्या। सो दिस थिंग्स विल कम लाइक द पार्ट्स आर। पावर प्लांट में हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अभी दिस पर्सन इज शोइंग टू द ईडी करंट टेस्टिंग। हाँ, अभी ये थोड़े से हायर लेवल के, मैंने एक लास्ट लेक्चर लिया था, शायद आपको पता रहेगा कि वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेल्डिंग कोर्स एंड सर्टिफाइड वेल्डिंग CWI इंस्पेक्टर कोर्स, उसमें ये सब टेस्टिंग सिखाई जाती है। हाँ, तो लेवल 2 या लेवल 3 का जब हम बोलते हैं कि ये सब मुझे आता है करके। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स वेरी वेल।